ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سب ٹریول دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے کنٹری کی سیر کروانے والے ہیں جو ہیں تو ہمارے ہمسائے ہی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کمزور بدن، نحیف جسم، بائک چلاتے، بچے اٹھاتے، سودا سلف لیتے، اپنی زبان میں شوں شوں کرتے مریل سے سانولے مرد و خواتین پہلی نظر میں غذائی قلت کے شکار نظر آتے ہیں۔ ظاہر میں جتنے کمزور، اندر سے اتنے مضبوط، نرم مزاج اور خوش اخلاق، محنت ان کا ایمان ہے، مسکراہٹ ان کی گھٹی میں شامل ہے۔ ایسی شرافت کا اٹھایا تامل ٹائیگرز نے غلط فائدہ اور پہنچایا اس کو نقصان۔ دوستو، یہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا، یہاں بدھا کا دانت بھی موجود ہے، یہاں چاول سے پہلے سالن کا نام لینا ممنوع ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا ایک نہیں بلکہ 2 کیپٹل ہیں۔ سب ٹریول پر نئے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، اور ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، سری لنکا کا آفیشیل نام ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا۔ سری لنکا کو ہم ان حوالوں سے جانتے ہیں کہ یہ ایک آئس لینڈ ہے، جہاں بھی جائیں گے آپ سمندر آپ کے ساتھ سفر کریں گے۔ سری لنکا نے اپنا پہلا کرکٹ ورلڈ کپ رانا ٹنگا کی قیادت میں پاکستان میں جیتا تھا۔ شاہد افریدی نے تیز ترین سنچری سری لنکا کے خلاف بنائی تھی، لیکن اس سے آگے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ دوستو، سری لنکا شمالی بحر ہند میں ایک جزیرہ نما ملک ہے جسے پرل آف انڈین اوشین اور اینٹی ڈراپ آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ بحر ہند میں ایک موتی پڑا ہے، اور اگر انڈین نقشے کے ساتھ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہندوستان کی آنکھ سے آنسو نکل آیا ہے۔ یہی بات اسے دنیا بھر سے منفرد بناتی ہے، اس کے ساتھ کسی ملک کی زمینی سرحد نہیں لگتی۔ اگر سری لنکا کے ساحل سمندر کے چاروں طرف چکر لگائیں تو 1340 کلومیٹر طویل ساحل سمندر بنے گا۔ دوستو، سری لنکا کا کیپٹل سری جے پورا کوٹے جے وردھنے سری لنکا کا پارلیمانی دارالحکومت ہے، جبکہ کولمبو ایگزیکٹو اور جوڈیشنل کیپٹل ہے۔ یہ دونوں ٹوین سٹی ہیں۔ ناظرین کرام، تامل ٹائیگرز نے سری لنکا کی کل آبادی کے 75% صنہائیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تاہم ٹائیگر کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس تنظیم نے ایک سری لنکن صدر سمیت انڈیا کے راجیو گاندھی کو خودکش حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ دوستو، تامل ٹائیگر کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ سری لنکا کا سب سے بڑا اور تجارتی مرکز کولمبو سٹی ہے۔ کولمبو ایک مصروف اور روشن شہر ہے جو اپنے اندر جدید طرز زندگی کے علاوہ قدیم تہذیبی آثار بھی سموئے ہوئے ہے۔ کولمبو ایک قدیم شہر اور تجارتی بندرگاہ بھی ہے۔ شہر کی آبادی تقریباً 8 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ سن 1505 میں واسکو ڈے گاما کی سربراہی میں پرتگالی یہاں وارد ہوئے اور انہوں نے اس کو کولمبو کا نام دیا۔ یہ شہر نمبروں میں تقسیم ہے۔ مجموعی طور پر یہاں 16 کولمبو ہیں۔ جو پہلے نمبر پر ہے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ اور مہنگا علاقہ ہے، اور جو 16ویں نمبر پر آتا ہے وہ سب سے کم ترقی یافتہ اور سستا علاقہ ہے۔ دوستو، کولمبو کا قدیم ترین کاروباری مرکز پٹا مارکیٹ ہے۔ پٹا بازار کے بغیر کولمبو کا سفر ادھورا تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر شہر رات بھر جاگتے ہیں، لیکن کولمبو ان میں سے نہیں۔ کولمبو جلدی سو جانے والا شہر ہے۔ یہاں کار کی سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ نہ لینے کا جرمانہ 25,000 ہے۔ لمبی سڑکیں، عمارتیں، کمرشل ہوٹلز، شاپنگ مالز اور دیگر چھوٹے بڑے سٹور آپ کو نظر آتے ہیں، اور اناناسک سری لنکا کی ایک بڑی پیداوار ہے، اس لیے یہاں سستی بھی ملتی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ بات کریں عہدہ بایوگرافی کی، سری لنکا کیونکہ بہت اکثریت کا حامل کنٹری ہے، اس لیے شہر کے ہر خاص و عام مقام پر بدھا کا مجسمہ نصب دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، گوتم بدھ کو بدھا اور بدھزم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام صدار تھا۔ یہ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ریاست کے راجا تھے۔ یہ علاقہ اب موجودہ نیپال میں شامل ہے۔ گوتم جب پیدا ہوئے تو نجومیوں نے اس کے باپ کو بتایا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا۔ گوتم بچپن سے ہی زبان کے میٹھے اور دل کے نرم تھے۔
जब बड़े हुए तो दुनिया के कई खितों का सफ़र किया, जहाँ जाते लोग इनके पैरोकार बनते गए। गौतम बुद्ध के फ़लसफ़े के मुताबिक इंसान इसलिए दुखी होते हैं कि वो दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा दिल लगा लेते हैं। उनका मशवरा था कि हर इंसान को अपने ज़मीर की पैरवी करनी चाहिए, दूसरों से हमदर्दी से पेश आना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, बुद्ध मत में मरने के बाद सज़ा का कोई तस्वर मौजूद नहीं, इसलिए बुद्ध मत में जन्नत और जहन्नम का भी कोई तस्वर मौजूद नहीं, और यह तमाम बातें उनके नज़दीक इंसानी जहन और दिल का फितूर हैं। गौतम को बुद्ध मत मज़हब के बानी माना जाता है। श्रीलंका अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो मैं आपको इसके अमेजिंग फैक्ट्स बताता चलूँ। एडमबर्ग, नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हिंदुस्तान और श्रीलंका के माबैन चूने के पत्थरों का एक पुल नज़र आता है। इसे आदम बुर्ज भी कहते हैं और साइंसदानों के मुताबिक ये हज़ारों साल पहले तामीर किया गया था। एलिफेंट्स, पहले दुनिया के हाथियों की बड़ी तादाद श्रीलंका में थी। हालिया दिनों में श्रीलंका के हाथियों की आबादी में 65% कमी वाक़ई हुई है। दोस्तों, कैंडी शहर में हाथियों की भरमार है और सियाह हाथियों को देखने के लिए वहां बहुत तौरे ख़ास जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर चीनी, यूके, अमेरिका, कनाडा और इटली के लोग शामिल हैं। राइस बिफोर करी, दोस्तों चावल और सालन श्रीलंका में एक अहम डिश है। इसे केले के पत्ते पर रखकर हाथ के साथ भी खाया जाता है। इसे राइस एंड करी कहते हैं। इसे आप उल्टा नहीं ले सकते, यानी सालन का नाम पहले चावलों से नहीं ले सकते। श्रीलंका दुनिया का पहला कंट्री है जहां सबसे पहले एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई थी। श्रीलंकन ज़बान से ज़्यादा सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देना पसंद करते हैं। आप समझते होंगे श्रीलंका का कौमी खेल क्रिकेट है। हकीकत में ऐसा नहीं। सबसे मशहूर क्रिकेट ज़रूर है, लेकिन इस मुल्क का कौमी खेल वॉलीबॉल है। दोस्तों, मुल्क में आबशारों और दरियाओं की बदौलत मुल्क की ज़रूरियात की बिजली 50% हाइड्रो पावर के ज़रिए पैदा होती है। श्रीलंका की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट टी है, यानी चाय। दोस्तों, चाय पानी में उबालने वाले सिर्फ चंद पत्तों के जायके का नाम नहीं, बल्कि हल्क में उतरते ये चंद घूंट दुनिया की तमाम तहज़ीबों का मुश्तरका विरसा है। चाय की काश्त सतह समुंदर से जितनी बुलंद होगी, उसमें जायका का मेयार इतना ही बेहतर होता है। चाय के खेत ढलवानों पर बनाए जाते हैं ताकि इन पर पानी ज़्यादा देर न ठहर सके। दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा जो मशरूब पिया जाता है वो चाय है। चाय का असल खालिक तो चीन है। वो इस वक्त चाय पैदा करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। श्रीलंका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चाय का एक्सपोर्टर है। दार चीनी को पूरी दुनिया जानती है, एशियाई खानों का लाजमी जुज़्व भी। दुनिया की 90% दार चीनी श्रीलंका से एक्सपोर्ट होती है। यहाँ लिटरेसी रेट 92% है, जो जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, श्रीलंका में 20 यूनिवर्सिटी हैं। श्रीलंका का कौमी परचम दुनिया के कदीम तरीन झंडों में से एक है। कहा जाता है कि सुनहरी शेर वाला ये परचम श्रीलंका के पहले बादशाह ने अडॉप्ट किया था। 1812 में बरतानवी साम्राज्य ने इसकी जगह अपना झंडा लहराया। अपनी तलवार रखने वाला सुनहरी शेर वाला फ्लैग सन 1948 में आज़ादी हासिल करने के बाद दोबारा मुतारफ़ कराया गया। दोस्तों, मिस श्रीलंका को ताज पहनाकर ये कहते हुए वापस ले लिया गया कि तुम एक तलाक याफ्ता हो। टूरिज़्म, सियाहत के लिए 12 महीने मौसम एक जैसा ही होता है। सड़कें ज़्यादा कुशादा तो नहीं, लेकिन मियार और सफाई श्रीलंका में निस्फ ईमान है। इसलिए सड़क हो या गलियाँ, ज़िंदगी का कोई शोबा हो, सफाई का ख़ास एहतमाम किया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ हाथ की सफाई पर तवज्जो होती है। दोस्तों, आदम की चोटी, जिसे सिरी चोटी भी कहा जाता है, मुल्क के सबसे मुक़द्दस तरीन पहाड़ है। अफसानवी और मजहबी नज़रियात में ये खड़ा है। श्रीलंका में ईसाई और मुसलमान दोनों यकीन रखते हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अदन से जलावतन किया गया था। अदन जन्नत को कहते हैं, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया था। जहाँ पहला कदम पड़ा वहाँ पाँव का निशान बना। बुद्धिस्ट का मानना है कि ये बुद्धा के पाँव का निशान है, और तामिल हिंदुओं का ख्याल है कि ये शिवा का नक्शे कदम है। दोस्तों, दुनिया भर से लोग हाथों में मोमबत्तियाँ लिए हुए यहाँ पाँव का निशान देखने आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 से 7 घंटे पैदल चलकर पहुँचने में लगते हैं। नवारा इलिया श्रीलंका का देवमालाई इलाका है, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। सुना है यहाँ बहारें फूल बरसाती हैं। अलग रंगत, जुदा तहजीब, हज़ारों मील के फासले, मगर एहसासात में कुदरती यकरंगी।
बुलंदी से गिरती आबशारों की बरसती बूंदों, अल्फाज से मावरा मंजर जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ एक खूबसूरत रेस्तोरां भी है जिसे इस तौर से बनाया गया है कि आबशार को जाने के लिए इसका दाखिली दरवाज़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। रेस्तोरां के दाखिली दरवाजे से इंटर होते ही सियाह खाने पर टूट पड़ते हैं, यानी ये एक बिजनेस फैक्ट्स भी है। टेम्पल ऑफ द श्रीलंका की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली साइड में से एक है। यहाँ बुद्धा का एक दांत रखा गया है। ये बुद्ध मत की एक मुकद्दस तरीन मुकाम भी है जहाँ सालाना फेस्टिवल मुनक्किद होता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से बुद्धिस्ट यहाँ का सफ़र करते हैं। सीगेरिया यासन हदरी ये एक कदीम चट्टान है जो वस्ती सूबे के नादरन मताली डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। इस जगह कुकिंग के शियापा ने अपने न्यू कैपिटल के लिए मुंतखब किया था। उसने चट्टान की चोटी पर अपना महल तामीर करवाया और इसके अतराफ को कलरफुल फ्रेस्को से सजाया। सेंटर में शेर का गेटवे बनाया और उसका ये नाम इसी वजह से कहलाने लगा। दोस्तों, बादशाह की मौत के बाद इसे 14वीं सदी तक बुद्धमत खानकाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। आज इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात करें तमिल टाइगर्स की। 70 की दहाई के आखिर में इसकी बुनियाद डाली गई। इस तंजीम के ज़रिए श्रीलंका को कमज़ोर करके इस पर कब्ज़ा करने का प्लान था। ये इतने ताकतवर थे कि उन्होंने एक इंडियन वज़ीर आज़म और एक श्रीलंकन सदर को भी मार दिया। आपको याद होगा कि 96 वाले वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक ने तमिल टाइगर्स की वजह से श्रीलंका में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। 2006 में पाकिस्तानी सफीर पर तमिल टाइगर्स ने हमला किया तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की अपील पर उनकी हेल्प करनी शुरू की। मई 2009 में टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन फैसला कुन मरले में दाखिल हुआ। 19 मई को तमिल टाइगर्स का सरबराह बारकरन को मार दिया गया। सिर्फ वही नहीं मारा गया बल्कि पूरी दहशतगर्द तंजीम का जड़ से सफाया कर दिया गया। फौजी ऑपरेशन के अख्ताम पर श्रीलंका की सरकार की तरफ से यह पैगाम जारी किया गया कि श्रीलंका की हुकूमत और उसके अवाम पाकिस्तान को अपना वो हकीकी दोस्त समझते हैं जिसकी हमें जब भी ज़रूरत पड़ी वो हमारा साथ खड़ा नजर आया। दोस्तों, जिसकी वजह से आज श्रीलंकन आर्मी की कमांड में शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जिसने पाकिस्तान से अस्करी तरबियत न हासिल की हो। साबिका आर्मी चीफ सरात फ्रांस का भी पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता है, जो तमिल टाइगर्स के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के मौका पर फौज के सरबराह थे। मोहतरम नाजरीन कराम, श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपीज़ है जो पाकिस्तानी और इंडियन 80 पैसों के बराबर है, 38 पैसों के बराबर है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है। श्रीलंका का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +94 है। चीन ने श्रीलंका के तिजारती दारुल हुकूमत कोलंबो में 270 हेक्टेयर पर गौर सिटी प्रोजेक्ट में $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। श्रीलंका ट्रांसपोर्ट मुल्क में 18 एयरपोर्ट हैं, 3 एयरलाइंस और 34 एयरक्राफ्ट रजिस्टर हैं। 1,15,000 किलोमीटर पर पुख्ता सड़कें हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में साहिल है, लेकिन सबसे बड़ी बंदरगाह कोलंबो की है जहां 96 छोटे बड़े जहाज़ मौजूद रहते हैं। पूरे मुल्क में 1562 किलोमीटर रेलवे लाइन मौजूद हैं। कोलंबो के साहिल के साथ रेलवे लाइन बिछी हुई है जहां श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए हर 8 घंटे के बाद रेलगाड़ी निकलती है जो मुसाफिरों से कचाकच भरी रहती हैं। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सनहाला और तमिल है। श्रीलंका में 75% आबादी सनहाली नस्ल, 11% श्रीलंकन तमिल, 10% नौरोज़, 4% इंडियन तमिल हैं। श्रीलंका का सरकारी मज़हब बुद्धिज़्म है जो मुल्क की आबादी का 70% है। 12% हिंदू, 10% मुस्लिम और 7% मसीही, जबकि बाकी दीगर मज़ाहिब के लोगों की है। श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 किलोमीटर है। ये दुनिया में 120वें नंबर पर शुमार होता है। इसका हाईएस्ट पॉइंट 2,524 मीटर बुलंद है। श्रीलंका की कुल आबादी 2,23,45,000 के करीब है और आबादी के लिहाज से 58वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की 41% आबादी नौजवान है, सिर्फ 19 शहरों में, जबकि बाकी 81% आज भी देहातों में रहती है। यहाँ की औसत उम्र 78 साल है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप किसी शहर
یا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا کسی ملک پر ڈاکومنٹری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔